Chapter 1 Number System Revision Lecture. Today onwards we are going to start the revision of the previous chapter, right? So step by step we did. Whenever we require to start the chapter, at that time we will start the chapter, but till then we will continue with the revision, right? So let's start. So number set. So number set we will already know that natural number, whole number, natural number, whole number, then integer, then rational number, and then the set of integer or real numbers, right? Every natural number is a whole, every whole number is an integer, every integer is a rational number, and every rational number is a real number. So if you proceed in this way, this is right, natural to real, correct. But real रेशनल है, सारे के सारे रियल रेशनल है, नो. सारे के सारे रेशनल इंटीजर है, नो. सारे के सारे इंटीजर होल है, नो. सारे के सारे होल नेचुरल है, नो. अगर इस डायरेक्शन में आओगे तो रॉन्ग, राइट. R2 and wrong, N2 are right. So let's see, right. Natural number is nothing but the 1 2 3 4 5. Now whole number is, we just include the zero, in it. Then the set of integer means what? This does not have an decimal expansion, right? For example, 0 1 2 3 -1 -2 etc. Okay. So then set of rational number q, -2 -1 -1.5. So rational number means what? The number which can be written in the form of p by q. For example, 2 by 3 -3 by 8 etc. Right. So those kind of a number is there in the rational number. Then set of real numbers. So in this real number, what we need to do is, we just need to put the any real number in it. We can put the any real number in it. So it is nothing but the 2 minus square root of 2 minus 1. In short, if you want to put 1.5, if you want to put minus 1 upon root 2, you say root 2, say root 3. So all these numbers are included in the set of real numbers. In the real numbers, we can include each and every number. You can collect any number in the world, out of the world, and you can put it in the real number, right? So that is the real number set. So then, right, so this is the natural number. अब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं? तो सबसे बड़ा है R. R में सारा का सारा कौन समा जाता है? Q. Q में कौन समा जाता है? Z. Z में कौन समा जाता है? होल. और होल में कौन समा जाता है? नेचुरल. तो नेचुरल कहाँ पर होगा? सबसे अंदर, राइट. तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है. तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो किसके अंदर समा गए? होल नंबर में, राइट. देन सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर, तो दोनों के दोनों सेट किस में आ गए? दोनों के दोनों सेट किस में आ गए? Z में. सो वी कैन से दैट एवरी नेचुरल इज अ होल, every natural is a integer, and every whole is a integer, right? But every Z is not W, every Z is not the N, every W is not the N. So if you can proceed in this way, the statement is wrong, right? Every Z is a Q. In the same manner, every Q is a R. तो ये देखो R सबसे बड़ा है, और इसके अंदर ये Q भी आ गया, Z भी आ गया, W भी आ गया, और N भी आ गया. That means every real is a rational, wrong. Every real is an integer, wrong. Every real is a Z, wrong. Every real is a W, wrong. Every real is a N, wrong. तो ये सारी की सारी अगर इस लाइन में जाएंगे तो wrong, ऐसे आएंगे तो right. Every natural is a whole, yes. Every natural is a Z, yes. Every whole is a integer, yes. Every integer is a rational, yes. Every integer is a real, yes, right. So if you can proceed, if you can proceed in this manner, this is correct, right. But if you want to proceed in this manner, so that is the wrong. Okay. Now the real number decimal expansion. See here, the remainder never becomes 0. यहाँ पर decimal expansion की बात हो रही है. तो decimal expansion मतलब क्या कि भाई हम 1/3 कर रहे हैं, उसको डिवाइड करो तो भाई 1 और 3. So 1 and 3. 0.0 3 3s are 9. 1 0 3 3s are 9. 1 और ऐसा चलता ही रहेगा. तो आंसर क्या आएगा भाई? 0.33333, राइट. सी रिमाइंडर नेवर बिकम 0. तो उसमें रिमाइंडर हमारी 0 हो ही नहीं रही है. तो उसका मतलब क्या है कि भाई वो पॉइंट के बाद चलता ही रहेगा, राइट. सो उसको बोलते हैं रिमाइंडर नेवर बिकम 0.
सो ऐसे टर्म्स तो क्या बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, और यू कैन से रिपीटिंग, और यू कैन से रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म 0.3333 चलता ही रहता है। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सबसे पहला टर्म है नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद है रिकरिंग, उसके बाद क्या है, रिकरिंग। जीरो पॉइंट थ्री 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 तो यहाँ पर ये वर्ड है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या, कि कोई एक नंबर पर्टिकुलरली रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन 478 478 478, तो यहाँ पर ये 478 478 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स रिकरिंग। इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग। कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग और रिपीटिंग। ओके, नाउ व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स जीरो, इफ आई राइट 1/2 से 5 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 0.5, यहाँ पर क्या आएगा आंसर 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो रही है, जीरो, रिमाइंडर क्या हो रही है, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है तो ये यहाँ पर अटक गया, यहाँ पर अटक गया। अटक गया का मतलब क्या, दैट इज द टर्मिनेटिंग टर्म, दैट इज द टर्मिनेटिंग टर्म, राइट, दैट्स इट, उसको उतना ही बोलेंगे खाली, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग टर्म, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, उससे पहले हमने क्या देखा कि भाई दो तरीके के नंबर होते हैं, एक तो रिमाइंडर बिकम जीरो और एक तो रिमाइंडर डज नॉट बिकम जीरो, राइट। रिमाइंडर बिकम जीरो तो क्या बोलेंगे सीधा भाई, टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। बट इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर क्या आएगा कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और यू कैन से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, कि वो है इर्रेशनल नंबर। वो क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब क्या, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है। ओके, सो लेट्स मूव नाउ। Now express the following in the p by q form से 0.6। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, let x is equals to 0.6 बार, राइट। अब यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर रिपीट होता है तो 10, दो नंबर रिपीट होते हैं तो 100, तीन नंबर रिपीट होते हैं 1000, फोर नंबर रिपीट होंगे तो 10,000। दैट मीन्स जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने जीरोस क्या बढ़ाते जाना है, उतने जीरोस क्या करना है, बढ़ाते जाना है, ठीक है। नाउ अगर एक नंबर रिपीट रहा तो मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 10 करो और यहाँ पर भी क्या करो, मल्टीप्लाई बाई 10। लेकिन 0.6 को क्या मैं ले सकता हूँ, 0.666 से चलता ही रहेगा, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर मूव हो जाएगा, तो क्या आएगा 6.66666। दैट मीन्स यहाँ पर तो ये 6 रिपीट ही हो रहा है, दैट मीन्स 6.6 बार, राइट। तो यहाँ पर आएगा 6.6 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर क्या आएगा 6.6 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है कि भाई इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, माइनस। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करो, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को कहाँ से माइनस करो, राइट हैंड साइड से। तो 6.6 बार माइनस 0.6 बार, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो 9x। और यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो भाई 6 बार में से 6 बार तो क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर 0 बचेगा तो आंसर इज 6। सो 9x इज इक्वल्स टू 12। अब ये 9 ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे। सो x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 9, ये दोनों कट होके 2/3 इज द आंसर। सो व्हाट वी कैन से, सो x इज इक्वल्स टू 9x is equals to 6, x is equals to 6 by 9. This is 3 3s are, and this is 2 3s are, 2 and 3 and 3 cut, so answer is 2 divided by 3. Now let's move ahead. देखो यहाँ पर नंबर 2 है, यहाँ पर नंबर कितना है, 2 है। सी x is equals to 0.47 बार। अगर यहाँ पर लेकिन रिपीटिंग कितना है, सिर्फ और सिर्फ ये एक,
तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, सो 10x माइनस 4.7 बार, राइट, बिकॉज ये पॉइंट मूव होकर यहाँ चला जाएगा। अब करना क्या है भाई, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो यहाँ पर तो सिंपल है कि भाई 10 माइनस 1 तो 9x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैसे करें, तो चलो देखते हैं। तो 4.77777 गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, यहाँ पर 0.47777, चलो थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 47777, तो यहाँ पर 770, लेकिन यहाँ पर 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर तो सिर्फ 0 ही है, लिखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, 4 पॉइंट, तो आंसर इज 4.3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 4.3। सो 9x इज इक्वल्स टू 4.3, सो 9x इज इक्वल्स टू 4.3। लेकिन हमको तो डेसिमल में लिखना नहीं है, हमको तो फ्रैक्शन में लिखना है। तो पॉइंट को रिमूव करके क्या करेंगे, सी यहाँ पर इस पॉइंट को रिमूव कर दो। पॉइंट को रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, डिवीजन में 10, अब ये 9 ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे। सो x इज इक्वल्स टू 43 डिवाइडेड बाई 90, वाई, बिकॉज 9 इंटू 10 90। दिस इज अवर आंसर. This is just a quick revision. You guys are already know what to do. Just I'm going to revise over here that so that your fundamental will be cleared out. उसके बाद क्या है भाई, 0.001, यहाँ पर कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 0.001 बार, सो मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी, अब यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर रिपीट है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000, सो 1 2 3x। अब इसको 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अभी इसका बार का मतलब क्या होता है कि 0.001 001 001 ऐसा चलता ही रहता है। ये पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, 1.001 बार। सिंपल, समझ में आ गया। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर, इस इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस कर दो। तो 1000 माइनस 1 इज नथिंग बट द 999x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर कैसे करें, तो यहाँ पे देखो 1.001 001 एंड 0.001 001, सिंपल, ये तो सब जीरो ही हो जाने वाला है, बचेगा क्या, सिर्फ 1, तो आंसर इज 1। अब ये 999 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। सो वी हैव 999x इज इक्वल्स टू 1 and therefore x is equals to 1 upon 9999. So this is our answer. Now let's move ahead with the another question, and that is 0.9. This is very much important, that is also asked in the MCQ test, right? x is equals to 0.9 बार। b यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1, तो 10 x is equals to 9.9 bar. Why? Because you need to write down into the expansion form. So this is the expansion form, is point goes on to the this side, so this 9 bar will be there, right? So equation 2 minus equation 1. So here you can know the 9x, 10x minus x is 9x, but यहाँ पर 999 0.999 0, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 9। अब ये 9 ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे। So 9 upon 9, answer is 1. Okay, so if you want to write this down, so decimal expansion in the p by q form, so it is nothing but the 1 upon 1. Okay, one more thing, can 2 can be written in the form of p by q? Yes, if there is nothing in the denominator, there is a 1, that we already see in the standard 8th. Okay, now here very much good sum. Classify the following numbers in the rational or irrational number. But for that, what you need to do? First thing, you need to know what is rational and what is irrational. Now, rational means what? The number which can be written in the form of p by q. और p by q के फॉर्म में कौन से नंबर लिख सकते हैं? तो terminating and non-terminating repeating. But if it's a non-terminating, non-repeating, then this number is a irrational number. Then that number is a irrational number. Okay, so now let's start. Okay, so sorry. Okay, here see 0.9 बार, तो यहाँ पर 0.99999, तो यहाँ पर नंबर 9 क्या हो रहा है, रिपीट, दैट मीन्स इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किस में आएगा, तो भाई रेशनल नंबर में आएगा। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 का पहले आंसर लिखना है। मैथ्स में कुछ भी करो, मैथ्स में
कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले लिखना है आंसर, सॉल्यूशन, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करना है, सिंप्लीफाई। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, तो 20। तो 20 तो क्या है भाई, रेशनल नंबर है। पहली दफा देखने पे ये लगता है हमको कि भाई ये स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज गोइंग टू बी द इरेशनल नंबर, बट व्हेन यू जस्ट टेक आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 400 दैट इज गोइंग टू बी 20. So 20 is a rational number. So that's why we can say it is a rational number. Let's see 4 by 9, square root of 4 divided by 9. और 4 का स्क्वायर रूट इस फॉर्मूले का मैं क्या ले सकता हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9. तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3. तो यहाँ पर ये तो 2 by 3. दैट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. If you can write down any number in the form of p by q, then it is a rational number. It is a rational number. So this number is a rational number, right? See, if I can write down this 3 by 5, you cannot say this is in the form of p by q because you have a square root over here, right? So whenever there is a square root, that is definitely irrational number. But if you want to be able to simplify it, if you want to be able to simplify it, if you want to be able to simplify, right? If you want to be able to simplify it. Okay, now see here this. So it is nothing but the 0.001010001 and on and on and on. तो यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा. तो यहाँ पर ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किस सेक्शन में आता है भाई, इर्रेशनल नंबर्स में आता है. किस में आता है, इर्रेशनल नंबर्स में आता है. अगर वो इर्रेशनल नंबर्स में आता है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये नंबर इरेशनल है. सिंपल. फॉर एग्जांपल, if you will take some more examples on this, so what we can conclude is here, see if you can write down square root of 5. So this number is irrational number, right? If you can write down square root of 25, तो square root of 25 का सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, तो वो क्या होगा 5. तो 5 क्या है, रेशनल नंबर. 5 क्या है, रेशनल नंबर, राइट. आगे कोई और एग्जांपल देखे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 7. आप सोचोगे भाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज नथिंग बट द 4. बट यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट. अगर नीचे भी स्क्वायर रूट है तो भी वो क्या है, इर्रेशनल नंबर. स्क्वायर रूट तो कहीं पे रहना ही नहीं चाहिए. अगर आपको रेशनल नंबर, अगर आपको क्या दिखाना है, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में कहीं पर भी स्क्वायर रूट आना ही नहीं चाहिए. स्क्वायर रूट बिखेर के सारे नंबर्स क्या है, रेशनल. स्क्वायर रूट जिसमें नहीं है वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर. और जिसमें स्क्वायर रूट है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर. पर ये स्क्वायर रूट कब, सिंप्लीफिकेशन के बाद. अगर सिंप्लीफिकेशन बाद भी स्क्वायर रूट रहेगा तो वो क्या है, इर्रेशनल. ये क्या एग्जांपल क्या देखा हमने, 16/7. तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या आएगा, 4/√7. सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी यहाँ क्या बच रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 7. So that is why this number is a irrational number. That is why this number is a irrational number. So what we see here is, right, see first of all the decimal expansion. So decimal expansion में क्या है हमारे पास कि भाई या तो टर्मिनेट हो जाएगा या तो टर्मिनेट नहीं होगा. अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, राइट, ये सब के सब नंबर क्या है, रेशनल नंबर. ये सारे के सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर. बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर. ये खास ध्यान रखना, 10th में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है पहले ही चैप्टर में, राइट, कि भाई रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, सो दैट्स इट फॉर द रिविजन पार्ट. वन मोर सेशन ऑन दिस आई एम गोइंग टू मेक, राइट. सो वो जब आता है तब तक आप वेट करो, राइट. आई विल मीट इन टू द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, bye bye, see you, stay home, stay safe.